This conference will now be recorded. Basically, VPC use three types of data. Three types of data. The first is internet gateway, second net gateway, and third is VPN. Internet gateway, net gateway, and VPN. These are the three types of gateways. Now, the use of internet gateway. When admin used internet gateway with when admin used internet gateway with admin attach internet gateway with VPC in AWS cloud. The VPC connected subnet. When admin connect internet gateway with VPC and root table. When admin attach internet gateway with VPC and root tables in AWS cloud, the VPC connected subnet in root table is accessed in WAN location via public IP. Got it, guys? तो सिंपल सा है when admin अगर हम admin अटैच करता है अपने VPC को साथ के इसको इंटरनेट गेटवे को, तो इंटरनेट गेटवे ऑलवेज अटैच आइदर अ VPC और रूट टेबल. तो अगर आप किसी भी रूट टेबल के साथ VPC को कनेक्ट करते तो होगा क्या उसका कि VPC कनेक्टेड सबनेट इन रूट टेबल, यानी कि वो VPC वो सबनेट जो रूट टेबल के साथ कनेक्ट, गॉट इट, वो सबनेट जो रूट टेबल के साथ कनेक्टेड है वो मशीन किसी भी लोकेशन पे आउटसाइड है. तो द कनेक्टेड सबनेट इन रूट टेबल, मैं इसको चेंज कर देता हूं, द कनेक्टेड सबनेट इन रूट टेबल instances or any other resource is accessed in WAN location via public IP. Got it? तो जो भी मशीन उस सबनेट से कनेक्टेड होगी, लुक लाइक दिस इज योर VPC. In this VPC, guys, you create a 1, 2, 3, 4, 5 root tables. Guys, you suppose create the root table 1, RT1, root table 2, give the any name, root table 2, root table 3, root table 4, and root table 5. This is the 5 root tables is available. Inside the each and every root you add like a HR subnet,
is like a sales, like a account, test, developer. There are the multiple root table, or each and every root table there are the multiple subnets is available. Now when you attach our internet gateway with any subnet, what happens? The sales machine is accessed in outside only on public IP. If you attach an internet gateway with it, that means the account machines are accessed only on outside with the public machine. यानी कि जो public access आपको मिलेगा, the WAN access, the internet gateway provide a WAN access. Provide a WAN access or public access or external access. गाइस ये सिंगल वर्ड ही है, हम WAN एक्सेस भी बोल सकते हैं, पब्लिक एक्सेस भी बोल सकते हैं, आइदर एक्सटर्नल एक्सेस यानी कि हमारे क्लाउड से बाहर की बातें. What is the point, everyone? The concept of clear internet gateway, the concept of internet gateway is clear, guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now Yes, sir. the net gateway, in a net gateway, admin create multiple root table. Such as root table 1, 2, 3, 4, and 5. Got it? And attach internet gateway with root table 3. Clear? The only root table 3 access internet and access internet, because every system have public IP address and gateway information. क्लियर द कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मेरे रूट टेबल 3 के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच करा है और मैं अगर उस पर कोई भी मशीन बनाता हूँ, तो हर मशीन पे हम क्या करेंगे, हर मशीन पे हमारा पब्लिक आईपी भी होगा, और पब्लिक आईपी भी होगा तो वो क्या एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, आइदर इंटरनेट गेटवे अटैच्ड. नाउ द सेम कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल the any other root tables, any other root table such as root table 1, 2, 4 and 5. No internet access, because no any gateway attached with root table. बाकी जो रिमेनिंग मेरी टेबल्स बची हैं उनको मेरा इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड नहीं है.
if you attach public IP address with every instance in root table 1, 2, 4 and 5. It's not attach any. If you attach public IP address with every instance in root table such as 1, 2, 3, 4 and 5, this instance also if you attach the public IP address with every instance in root table such as 1, 2, 3, 4 and 5, this instance not accessed in a public network. Also, no internet working in this instances or machine, not internet working. गाइस देखिए सिंपल सा है, इफ यू अटैच अ पब्लिक आईपी, यानी कि अगर आप गेटवे आपने अटैच नहीं करा और इफ यू कैन अटैच पब्लिक आईपी, तब भी आपकी मशीन पर ना तो इंटरनेट एक्सेस होगा और ना ही वो मशीन आउटसाइड एक्सेस होगा। गॉट इट गाइस? यानी कि गेटवे इज अ मैंडेटरी, खाली पब्लिक आईपी अटैच करने से ही कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर? व्हेन यू अटैच इंटरनेट गेटवे with any instance or root table, or either you attach a public IP with any instance, दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड है। एक चीज रिमेंबर रखना कि when you attach internet gateway with any root table, जिस भी रूट टेबल के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच होगा वो ही मशीन आपकी आउटसाइड एक्सेस हो पाएंगी पब्लिक आईपी। लेकिन इंटरनेट गेटवे अगर जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच नहीं है वो मशीनें आपकी आउटसाइड एक्सेस नहीं हो। गॉट इट? नाउ व्हेन यूजर अटैच नेट गेटवे with root tables such as 1, 2, 4 and 5. This root table access internet without public IP। अगर आप नेट गेटवे किसी भी रूट टेबल के साथ अटैच कर लोगे तो वो उस पर इंटरनेट वो मशीन एक्सेस कर सकती है विदाउट पब्लिक आईपी। देयर इज नो नीड फॉर द पब्लिक आईपी। बट डिफरेंस क्या होगा? नो वन कैन एक्सेस दिस मशीन इन आउटसाइड, बट नो वन access this instances in WAN network। और इन मशीन को कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता। आइदर इफ यू अटैच पब्लिक आईपी, फिर भी ये मशीन से आपकी क्या होंगी? पब्लिक आईपी से भी एक्सेस नहीं होंगे। लाइक आई एम जस्ट अटैच द इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे with subnet 4 and subnet 5, और सबनेट 4 एंड सबनेट 5 दोनों में क्या फर्क है कि लाइक इफ यू क्रिएट अ वन मशीन इन attach this machine and you created two machines, one machine is via suppose करिए attached with a net gateway and second machine you can attach with a
sorry, internet gateway and second machine will attach with a net gateway. You provide a both IP. Each and every machine use a PUBLIC public IP. It look like a 1.1.1.1 and another is a private IP. So private IP is look like 172.13.1.20.20. Now the same as net gateway. Net gateway पे आपको क्या मिलेगा? Only need a private IP. तो प्राइवेट IP होगा तो भी आपका नेट क्या होगा यहाँ पर गाइस चल जाएगा. बट अगर आप यहाँ पर कहते कि सर यहाँ तो हम पब्लिक IP से एक्सेस करते थे, तो इफ यू कैन प्रोवाइड अ पब्लिक IP लाइक 2.2.2.2, तो फिर भी ये वाली जो मशीन है ये आपकी आउटसाइड एक्सेस नहीं होगी. Got it? So when you attach a machine with an internet gateway, the machine is accessed via public IP address. But if you attach a machine in a net gateway, there is not access in a public IP. So public IP की need ही नहीं है. Got it? क्यों? कि the net gateway provide a one-way communication. Net gateway provide one-way communication कि आप सिर्फ बाहर के नेटवर्क को ही क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो. बट इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडेड टू वे कम्युनिकेशन. इंटरनेट गेटवे आपको प्रोवाइड कराता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आपका सर्वर आउटसाइड भी एक्सेस हो सकता है वाया पब्लिक आईपी और आउटसाइड की भी किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. बट द नेट गेटवे इज ओनली यू डोंट एक्सेस, यू कैन एक्सेस आउटसाइड रिसोर्सेज बट नो वन कैन एक्सेस इनसाइड रिसोर्सेज. आपको कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता. तो आइदर आपके पास चाहे प्राइवेट आईपी हो चाहे आपके पास पब्लिक आईपी हो, कोई भी आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा. सिंपल सा है कि अगर किसी को इस मशीन का आईपी पता लग जाए, यूजर पता लग जाए एंड पासवर्ड पता लग जाए, तो वो एक मशीन एक्सेस हो जाएगी. यस और नो? ये तीन ही चीज तो चाहिए. बट अगर यहाँ पर मैं ये तीनों चीजें भी किसी को एक्सेस कर देता हूं तो भी वो इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो गाइस आपके घरों में जितने भी इंटरनेट चलते हैं वो सब आपके नेट गेटवे पे चलते हैं. आपकी मशीनों पे एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है और सिंगल आईपी एड्रेस की हेल्प से आप क्या करते हो? आपका जो वाईफाई लगा रहता है वहां पे नेट कॉन्फ़िगर होता है और नेट क्या करता है? आपके एड्रेसेस को ट्रांसलेट करता है. विद द वन ऑफ सिंगल पब्लिक आईपी यू कैन अलाउड मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपी. आप एक सिंगल आईपी से मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कम्युनिकेट करा सकते हो. गॉट इट एवरीवन? Yes. गाइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू? गाइस किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. चलिए गुड. So this is a two way. Third way is a VPN gateway. Guys, VPN gateway is very important. कि सिंपल सा है कि सर अब अगर हमें अपनी मशीन एक्सेस करनी हो तो हम कैसे करेंगे? आप कह रहे हो कि इंटरनेट गेटवे पब्लिक आईपी के थ्रू करते हैं तो अनसिक्योर है और नेट गेटवे के थ्रू होगी नहीं एक्सेस. यस और नो? कॉन्सेप्ट तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इफ यू कैन एक्सेस मशीन वाया इंटरनेट गेटवे तो आपको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी. लेकिन पब्लिक आईपी इज अनसिक्योर और नेट गेट पे हम यूज करते हैं तो हमारी मशीन आउटसाइड एक्सेस ही नहीं होंगी. तो हम क्लाउड की मशीनों को एक्सेस कैसे करें? द ऑप्शन इज VPN गेटवे. Every organization use a VPN when you access cloud servers in on-premise network used VPN connection or gateway, because VPN
provide secure communication between cloud to on-premise infra and used only private IP address. When admin configured when admin used VPN gateway, its access server via private IP address. Got it? यानी कि आप प्राइवेट आईपी एड्रेस से अगर अपने सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वीपीएन। लाइक अगर मैं इस वीपीसी के साथ वीपीएन अटैच कर देता हूं तो जितने भी रूट टेबल्स हैं उन सारी मशीन्स को मैं उनकी प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर सकता हूं। बट इसके अंदर एक कंडीशंस है गाइस। द कंडीशंस क्या है कि सपोज यू यूज अ वीपीएन। अब ऑन प्रीमाइस के अंदर मैंने वीपीएन एक गेटवे लगा दिया और वीपीएन गेटवे के बाद सपोज देयर आर 3 यूजर्स इज अवेलेबल। This 3 user is available in my organization, like this is user 1, user 2 and it's user 3. Got it? Now कि अब अगर आप VPN कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो रिमेंबर कि अगर आपने VPN गेटवे भी लगा दिया तो ये सारी मशीनें भी एक्सेस नहीं कर पाएंगी। VPN को एक्सेस करने का एक वे है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? VPN को एक्सेस करने के लिए आप उसी सिस्टम पे, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरे ऑन प्रीमाइस में 500 एम्प्लॉइज है, बट 500 एम्प्लॉइज में से अगर मैंने सर्वर बनाया है, वेब सर्वर बनाया है, तो वेब सर्वर को मैं स्पेसिफिक उसकी टीम को एक्सेस दूंगा। सभी को तो नहीं दे सकता ना, बट पब्लिक आईपी तो किसी को ही मिल जाएगा, वो एक्सेस कर सकता है। बट प्राइवेट आईपी अगर यहाँ पे किसी को मिल भी जाता है तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। रीजन कि मैं लाइक चाहता हूँ कि यूजर 2 ही सिर्फ एक्सेस करे क्लाउड की रिसोर्सेज को। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। गॉट इट? मैं क्या करूंगा? आई एम इंस्टॉल अ वीपीएन सॉफ्टवेयर और वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आई एम कनेक्ट विद वीपीएन सर्वर। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम्स को वीपीएन गेटवे या वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करूंगा। देन जब सर्वर बन जाएगा तब मेरा ये टनल बनेगा, तब जाके मैं क्या करूंगा? अगर मेरी कोई मशीन है यहाँ पर तो उस मशीन के प्राइवेट आईपी से मैं अपनी मशीन पर उसको एक्सेस करूंगा। गॉट इट द पॉइंट? ये एक सिक्योर टनल बनाया है पहले, यानी कि पहले मैंने अपनी मशीन को किसके साथ कनेक्ट करा है? वीपीएन। यानी कि अब आपको कनेक्ट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहले आपको वीपीएन सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि अगर वीपीएन की आईडी और पासवर्ड भी पता लग गया तब भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सिस्टम पे स्पेसिफिक वो वीपीएन का लॉगिन क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। यस और नो? वो तो नहीं मिल सकता ना। तो वीपीएन की आईडी आपको चाहिए, देन वीपीएन पासवर्ड आपको चाहिए, देन वीपीएन का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद जो आप वीएम यूज कर रहे हो, वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर एक्सेस करना चाहते हो, उसका आईपी चाहिए, देन वीएम का आपको यूजर चाहिए, देन आपको वीएम का पासवर्ड भी चाहिए। यानी कि इतनी क्रेडेंशियल्स होंगी तब जाके आप क्या करोगे? अपनी मशीन को एक्सेस कर पाओगे। वो भी उसी मशीन पर एक्सेस होगी जिस मशीन पे वीपीएन का सेटअप होगा। बेनिफिट क्या है कि अगर आपने यहाँ पे 500 सर्वर्स बनाए तो नो नीड फॉर एनी सर्वर पब्लिक आईपी। आपको किसी भी सर्वर पे पब्लिक आईपी की कोई भी नीड नहीं पड़ती। क्लियर गाइस? सर ये टीम व्यूअर के थ्रू भी तो क्रिएट कर सकते ना वीपीएन? कहाँ पे? टीम व्यूअर के थ्रू भी वीपीएन का क्रिएट कर सकते ना, सर्वर पे या फिर दूसरी मशीन पे? डियर हम टीम व्यूअर यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम तो क्लाउड यूज कर रहे हैं।
हाँ बट टीम वेयर के लिए भी तो सर इंटरनेट का एक्सेस होगा ना, तभी टीम वेयर चलता है, नहीं तो उसका तो एक्सेस होगा नहीं बिना इंटरनेट के। हाँ इंटरनेट तो चाहिए बिल्कुल। ना। हाँ ठीक है, इंटरनेट तो हर चीज के लिए चाहिए, बट इंटरनेट हमें हर चीज के लिए चाहिए। सर इससे हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, जैसे अगर हम सर सर्वर इंस्टॉल कर वीपीएन के आईडी पासवर्ड ये सब यूज करेंगे तो सर। कॉस्ट बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। सर यहाँ पे हमारे मल्टीपल हो गए ना सर, ये सब आईडी पासवर्ड फिर हमारे वीएम में भी यूज करेंगे हम सर। वीएम के अंदर हमें पब्लिक आईपी ही नहीं चाहिए ना, हमारे आईपी की कॉस्ट हाँ तो जी। रिड्यूस हो गई ना, फिर कॉस्ट कहाँ पर बढ़ रही है? तो वीपीएन में जैसे सर वीपीएन का हम यार एक वीपीएन की बात आईडी बताओ, फिर पासवर्ड आप लोग कॉपी घर पे ताला लगा के क्यों जाते हो? बाइक में ताला क्यों लगाते हो? लॉक क्यों लगाते हो भाई? चोरी ना हो इसलिए हमारा कोई भी डाटा चोरी ना हो, या कोई तो भी फिर कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे कोई भी हो? अदर पर्सन या तो यार एक्सेसिबल ना देखो हो। सिंपल सा है, या तो आप कॉस्ट सोच लो या सिक्योरिटी सोच लो। सिक्योरिटी ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी है सर। सिक्योरिटी हो इसलिए। फिर मत लगाओ ना घर पे ताला, किसने बोला है? क्यों बैंक का पासवर्ड इतना अपने मोबाइल में आईएसआई की इंफॉर्मेशन उस तरीके से पैटर्न डाल के रखते हो और चार चार पासवर्ड लगा के रखते हो? क्यों गाइस? ओपन रखो, जरूरी है पैटर्न लगाना। फेसबुक का पासवर्ड ओपन देके रखो सबको, व्हाट्सएप का भी। गाइस बताओगे? क्यों अपने जब आते हो घर से तो क्यों लॉक करके आते हो? रूम खुला छोड़ के आया करो। अनवांटेड थ्रेड से बचने के लिए तो हम लॉक लगाते हैं। तो कंपनी अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए इंप्लीमेंट नहीं करेगी सिक्योरिटी, वो भी तो कंपनी के लिए ताला ही है। या तो नो यस सर। बोल दो, Yes, sir. एक कर दो पास, एक तुम तो वो स्टूडेंट हो, यूनियन हो, बनाओ अभी एक वीडियो और डालो, शेयर करो। नो नीड, बैंकों में ताले नहीं चाहिए हमें, पासवर्ड सिस्टम हटा लिया जाए सारी जगह से, कॉस्ट बढ़ रही है गवर्नमेंट की, कॉस्ट कम हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? नो। इंडिया है, कुछ भी करा सकते हो। आप में से अब कोई प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बने तब इम्प्लीमेंट करा, वैसा पोजीशन में मेरे जैसा बंदा ना हो। चलो गाइस, so now how to create internet gateway, how to create net gateway and VPN. So guys, first of all I'm just create a one VPC. मैं एक VPC create कर रहा हूँ and inside the VPC, this is my VPC. Inside the VPC I'm created two root tables. Inside the two root tables I'm created two subnets. Now I'm created two gateway. One is net gateway, second is internet gateway, and third is VPN gateway. Now attach internet gateway with this root table, net gateway with this root table. VPN gateway I'm not attached any root table. But now simple said, this is my VPC. This is my public subnet. This is a private subnet. This is WAN-RT root tables, or inside the WAN root tables I made a public subnet. This is a LAN- root table, LAN root table, or inside the LAN root table I made a private subnet, and both are attached with. Now attach a internet gateway. Internet gateway and net gateway.
and this is a VPN gateway. VPN gateway attached with VPC. Got it the point? Now, when you create a net gateway or VPN gateway, the both gateways is attached with a public subnet. Remember, क्योंकि दोनों पर पब्लिक आईपी चाहिए, तो ये हमने एक पब्लिक नेटवर्क ही बनाया है कि अगर इस मशीन से कोई सबनेट से कोई भी अटैच होगा तो पब्लिक आईपी नीड है। तो अब में क्या है वीपीएन और नेट गेटवे के लिए, क्योंकि एक तरफ तो वो वैन से कनेक्ट होगा, ठीक है, और एक तरफ लैन से कनेक्ट होगा, तो इसलिए हमें एक एक पब्लिक आईपी दोनों डिवाइसेस पे रिक्वायर्ड है। क्लियर एवरीवन? नाउ आई एम जस्ट log in with portal, then click on VPC. Name your VPC, create VPC, give the name is ICCP-VPC. Use IP address is 10.0.0.0/24. Now create. After that, I'm created two subnet. Create subnet. Flag VPC. Subnet 1 PUBLIC public-SUB subnet. Availability zone A 10.0.0.0/26. Add subnet, private subnet. Zone B 10.0.0.0/64/26. Now create a two root tables. Create root tables. LAN-RT and attach a LAN subnet with this root table. LAN means private subnet, is called a LAN subnet. Now create a root table. Again create another root table, guys. The name is like WAN-RT. Create a root table and select a public subnet. Now the first of all, just I'm create an internet gateway. सबसे पहले मैं इंटरनेट गेटवे कर रहा हूँ. I'm just click on internet gateway. Create an internet gateway. Give the name is look like ICCP-IG. Now create. अब आता है कि इंटरनेट गेटवे को किसके साथ, तो फर्स्ट टाइम अटैच इंटरनेट गेटवे विद VPC और सेकंड टाइम अटैच इंटरनेट गेटवे विद WAN रूट टेबल. अगर मैं इसको WAN रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा तो क्या होगा, मेरी इस वाली रूट टेबल को पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा. दैट मींस WAN रूट टेबल के अंदर जो भी सबनेट्स हैं वो मशीन आपकी आउटसाइड पब्लिक आईपी से भी एक्सेस हो जाएगी. तो नाउ क्लिक गो टू द एक्शन एंड click on routes, edit routes, add. Clear first point. Second, how to create net gateway. I'm just click on a net gateway. Create net gateway. ICCP-net subnet. So guys, always कि एक तरफ ये public subnet से connect होना चाहिए. Public IP need है. So I'm just select a public subnet. और अगर आपको पता है कि जब भी आप पब्लिक अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हो पब्लिक सबनेट पे, तो आपको पब्लिक आईपी इनेबल करना होगा. सेम है यहाँ पर भी हमें एलोकेट प्लास्टिक आईपी यानी कि पब्लिक आईपी एक लेना पड़ेगा. किसके लिए, नेट गेटवे के लिए. नाउ द क्रिएट नेट. मैंने अपना नेट गेटवे अटैच कर लिया. नाउ आई अटैच दिस गेटवे विद द प्राइवेट रूट टेबल, दैट मींस द लैन रूट टेबल. आई एम जस्ट गो टू द रूट टेबल. Then create root table. Routes, edit routes,
ऐड 00। सो ये सिर्फ है आपका लैन नेटवर्क में इंटरनेट चलाने के लिए नेट गेटवे हमने। थर्ड आता है VPN गेट। तो हाउ टू क्रिएट अ VPN गेटवे, सिंपली आई एम जस्ट गो टू EC2 and launch instance and go to the AWS marketplace and search OpenVPN. OpenVPN. This is the default username is OpenVPN AS. OpenVPN सॉफ्टवेयर का जो यूजर नेम है वो OpenVPN AS है, नोट डाउन कर लेना अपने पास। Select कंटिन्यू। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना आपको T2 स्मॉल लेना है। T2 स्मॉल पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, T2 माइक्रो कर लेना, अदरवाइज चार्जेस लग जाएंगे आपके। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें क्या है, अपने VPC पे पब्लिक सबनेट से कनेक्ट करना है एंड पब्लिक आईपी इनेबल करना है। अगर आप VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हो, नेट कर रहे हो तो नेट को भी पब्लिक से कनेक्ट करना है, पब्लिक आईपी चाहिए। सेम एज VPN सर्वर पे भी यू नीड अ पब्लिक आईपी। नेक्स्ट लाइनक्स बेस्ड है, रिमेंबर रखना। तो आपकी .pp का एक्सटेंशन की पेयर यूज होगी। VPN नेक्स्ट सिक्योरिटीज, दिस इज द डिफॉल्ट प्रोटोकॉल, और इधर आप जो भी प्रोटोकॉल्स अलाउ कराना चाहते हैं करा सकते हैं। ये इसके रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं, तो मैं कोई और अदर प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए SSH अलाउड हो रखा है आपका, HTTPS अलाउड हो रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप RDP और व्हाटएवर जो भी प्रोटोकॉल्स अलाउ करना चाहते हैं कर सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहे तो ऑल ट्रैफिक भी कर सकते। नाउ द रिव्यू एंड लॉन्च एंड सेलेक्ट लिनक्स। तो जो VPN सर्वर है वो लिनक्स बेस्ड है, तो आपको लॉन्च इंस्टेंस। आफ्टर दैट आई क्रिएटेड 2 मोर मशीन्स, वन इज पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन मैं दोनों में से किसी भी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं दूंगा, क्योंकि हमने वो मशीनों को VPN के थ्रू एक्सेस किया। अभी तक आप जब भी मशीन एक्सेस कर रहे थे तो आप कर रहे थे पब्लिक आईपी। अगर आप VPN सर्वर बना लेते हैं, VPN गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो यू डोंट नीड टू रिक्वायर यूज पब्लिक आईपी। Now I'm just click on a launch instance. Now using server 2012, next T2 micro, next. Now the select a VPC, और यहाँ पर मैं select कर रहा हूँ public, but I'm not enable a public. Next, next. अब इंटरनेट गेटवे अटैच है, लेकिन फिर भी पब्लिक आईपी मैंने डिसेबल कर दिया, तो ये मशीन आपकी एक्सेस ही नहीं होगी। Public -VM security group, I'm just allowed RDP. Next, review and launch and select the key pair. Now create a one more virtual machine, same process. Launch instance, server 12, select. Now इसको प्राइवेट में मैं ऐड कर रहा हूँ। नाउ गाइस, अब सबसे पहले मेरे को VPN पर लॉगिन होना और VPN की कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको VPN कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो या तो आप उसकी डिफॉल्ट सेटिंग ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट सेलेक्ट द VPN, पब्लिक आईपी, गो टू 40, कंट्रोल V, अपीयरेंस, चेंज, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। Now SSH authentication, browse the select the key pair, git linux, this is my key pair. Now open and accept the default username. अगर आप Amazon Linux यूज करते हैं तो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है EC2, बट यहाँ पर जो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम है वो है OpenVPN AS।
दिस इज अ डिफॉल्ट यूजर। नाउ गाइज ये आपसे सिर्फ पूछेगा कि आप ऑटो इंस्टॉल करना चाहते हो, तो प्लीज इंटर यस टू इंडिकेट योर एग्रीमेंट। तो मैं कर देता हूँ यस। नाउ अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या करना है, ये आईपीज आपने अलाउड कराए हैं, ये प्रोटोकॉल्स आपने अलाउड कराए हैं, जस्ट प्रेस इंटर। बट गाइस यहाँ पे देखिए एक चीज आएगी, दिस वन, कि डू यू विश टू लॉग इन टू एज एडमिन यूजर एज ओपन वीपीएन। तो वो कह रहा है कि आप जो अपना लॉगिन आईडी, लॉगिन यूजर नेम रखना चाहते हो, ओपन वीपीएन रखना चाहते हो, कोई अदर। अगर आप कोई अदर रखना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए, वो आपसे फिर से नया पूछ लेगा। मैं कहता हूं मैं ओपन वीपीएन ही रखना चाहता हूं, सो आई एम जस्ट प्रेस इंटर एंड देन इंटर। नथिंग, कुछ नहीं करना, इंटर 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 करना है। अब आपको यूजर नेम तो पता लग गया ओपन वीपीएन, बट पासवर्ड नहीं पता। तो पासवर्ड आपको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा इस यूजर। तो हाउ टू सेट पासवर्ड? तो अगर आपको पासवर्ड सेट करना है, कमांड है sudo sudo PASS और यूजर नेम OPEN ओपन VPN। Now set the password ASD@1234 and now ASD@1234। और गाइस मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर। Now guys you can see the ऊपर URL आ रहा है, client URL। I'm copy this URL and paste in a browser, advance and proceed। यूजर नेम क्या था मेरा VPN पे लॉगिन होने का, OPEN ओपन VPN, एंड पासवर्ड क्या था ASD@1234। नाउ ये हमें सेटअप दे रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। तो नाउ आई एम यूजिंग अ विंडोज, so I'm just click on Windows, it download the VPN setup। अब मैं जिस भी सिस्टम पे ये सेटअप इंस्टॉल करूंगा वही मेरी क्लाउड की मशीनों को एक्सेस कर पाएगा। नाउ आई एम इंस्टॉल दिस सेटअप इन माय मशीन, डबल क्लिक, नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड नाउ इंस्टॉल। तो गाइस इस सेटअप से सबसे पहले हम कनेक्ट होंगे VPN सर्वर के थ्रू। तो सबसे पहले आपको अपनी VPN कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अगर VPN कनेक्टिविटी नहीं है तो आप अपनी मशीनों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पब्लिक आईपी तो है ही नहीं वहां पर। जस्ट वेट। नाउ फिनिश। देखिए फिनिश करने के बाद ये इस तरीके से आइकन आपका बन के आ गया। यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस आइकन, नाउ गाइस अब आपको क्या होना है, कनेक्ट होना है। ऐसे देखिए 3.110.162 ये जो आईपी आपका आ रहा है ना, ये आपके VPN सर्वर का आईपी। नाउ व्हाट इज द VPN यूजर नेम? OPEN ओपन VPN and the password is ASD@1234 and now click OK। So guys first it's connected, then you access the virtual machine। So now it's connected successfully। Yeah, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट में करते हैं, हम सबके लिए अलग अलग VPN क्रिएट करते हैं 1 by 1। वो कैसे करते हैं सर? तो वहां पे आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए ना।
आईपी थोड़ी ना अलग होगा सबकी। नहीं आईपी नहीं सर, यूजर बोल रहा हूँ मैं, यूजर कैसे हाँ क्रिएट तो वहाँ पे करेंगे? यूजर क्रिएट करो ना मल्टीपल, मैंने तो एक ही करा है ना, यूजर ऐड करके आप करिए वीपीएन सर्वर पे जाके, वीपीएन यूजर। देखिए मैं यहाँ पे क्लाउड के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, वीपीएन यूजर्स नहीं बता रहा, ठीक है। तो वीपीएन सर्वर पे ऐसे हमने एक यूजर क्रिएट करा ओपन किया, ऐसे 5wd यूजर ऐड कमांड से आप यूजर वहाँ पे क्रिएट करिए, उसको पासवर्ड दीजिए और यूजर एलोकेट कराइए। नाउ गाइस आफ्टर दैट कि अब मैं अगर अपनी मशीन को आप प्राइवेट आईपी लेता हूँ किसी भी मशीन का, लाइक आप प्राइवेट मशीन का मैं ले लेता हूँ, पब्लिक आईपी तो है ही नहीं मेरी मशीनों पे, देन क्लिक ऑन कनेक्ट RDP गेट पासवर्ड ब्राउज, keep windows browse shift। तो गाइस देखिए पासवर्ड 10.0.0.97 मेरा आईपी है। तो नाउ आई जस्ट गो टू रिमोट डेस्कटॉप 10.0.0.97। now click on connect, username ADMINISTRACOR and the password is, and now you can see your machine is via private because of VPN। अगर मैं वो VPN कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो आप देखिए आपकी मशीन जो एक्सेस हुई है ऑटोमेटिकली बंद हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा डिस्कनेक्ट करूंगा, ये मशीन जो आपकी एक्सेस हो रही है ये आपकी मशीन बंद हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी मशीन को भी एक्सेस कर लेता हूँ एक बार। सर इसमें इंटरनेट चलेगा दौड़ेगा, एक्सेस हो जाए तो चला के दिखा दे। तो आप देखिए इंटरनेट आपको चलाना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस मशीन। ओके क्लियर। नाउ कहते कि मैं अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ मशीन तुरंत बंद हो जाएगी। It's completely depends on VPN. So first you connect with VPN server, then you connect with virtual। और नेट क्यों चल रहा है बिकॉज, लेकिन अगर आप पब्लिक आईपी एलोकेट करते हो मशीन को तो जो पब्लिक सबनेट पर है वो तो हो जाएगा। अगर लाइक आप पब्लिक आईपी एलोकेट करना भूल गए किसी भी मशीन, लाइक आप देखिए प्राइवेट मशीन को अभी मैं वीपीएन के थ्रू से एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट मैंने कहा था पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं हो, तो क्या करता हूँ, आई एम जस्ट जनरेट द पब्लिक आईपी, आई एम जस्ट गो टू इलास्टिक आईपी। यहाँ पर एक आईपी ऑलरेडी जनरेट हो रहा है बिकॉज कि ये मेरा नेट के साथ हो रहा है। आई एम जस्ट एलोकेट आईपी एलोकेट। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक और आईपी यहाँ पे जनरेट हो गया 3.7.122.141। नाउ सिलेक्ट दिस आईपी और मेरे को इसको किसके साथ ऐड करना है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी विद इंस्टेंसेस के साथ करना चाहता हूँ। सिलेक्ट इंस्टेंस, तो यहाँ पर प्राइवेट के साथ कर लेता हूँ मैंने, प्राइवेट एंड
एसोसिएट। तो नाउ यू कैन सी कि आपका ये जो आईपी मैंने एसोसिएट करा है प्राइवेट मशीन के साथ, और मैं EC2 इंस्टेंस पे आता हूँ, प्राइवेट आईपी एसोसिएट 1 गॉट इट। और अब मैं अगर इस आईपी से RDP लेता हूँ, so it give you the error। क्यों? क्योंकि there is no internet gateway attached, क्योंकि मैंने मशीन का एक्सेस किसके थ्रू दे रखा है, VPN के। बट अगर मैं यही आईपी उसके साथ अटैच कर देता हूँ, किसके, पब्लिक के साथ, तो पब्लिक के साथ ये हो जाएगा। नाउ द क्लोज इट, मैं क्या करता है प्राइवेट VM को और VPN को डिलीट कर देता हूँ। लैब हमारी हो चुकी है, सो आई एम जस्ट टर्मिनेट। नाउ कि अगर सेम आईपी को मैं अटैच कर देता हूँ किसके साथ, पब्लिक VM के साथ, सो हाउ टू अटैच, सेम यू कैन गो टू द इलास्टिक आईपी। इलास्टिक का मतलब है स्टैटिक आईपी। सेलेक्ट दिस वन, एक्शंस, डीएसोसिएट। पहले तो मैं उसको डीएसोसिएट करता हूँ इंस्टेंस से, गॉट इट, यानी कि रिलीज कर लिया मैंने, एंड देन अटैच टू एसोसिएट इलास्टिक आईपी विद पब्लिक VM। नाउ एसोसिएट। और अगर मैं अब इसी आईपी से दोबारा से इस मशीन को एक्सेस करता हूँ, क्या आईपी था मेरा, 3.7.122.141। नाउ कनेक्ट। तो देखिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछने लग गया, दैट मींस पब्लिक मशीन है। क्यों? क्योंकि इट्स अटैच्ड विद नेट गेट, इंटरनेट गेट। हाँ, जैसे जो पब्लिक वाली एक्सेस करके उसके अंदर प्राइवेट जा सकते हैं। जाने की जरूरत क्या है, हम क्यों दें हम ये एक्सेस, हम सिंगल पब्लिक आईपी भी क्यों दें? अगर वो पब्लिक ही एक्सेस कर ली तो फिर तो प्राइवेट आईपी से कोई भी एक्सेस कर लेगा, लेकिन VPN में तो प्राइवेट आईपी भी पता लग जाए तब भी एक्सेस नहीं हो रहा, या तो नो? क्योंकि पहले तो VPN क्रेडेंशियल चाहिए और वो सॉफ्टवेयर चाहिए। डुअल लेयर सिक्योरिटी हो गई ना, कि अगर आप पब्लिक मशीन से एक्सेस करते हो उसके अंदर से आगे डायरेक्ट प्राइवेट आईपी करोगे एक्सेस हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं चलो ठीक है, आपने मेरी मशीन एक्सेस भी कर ली, तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने VPN सेटअप दिया हो। तो VPN इज रिक्वायर्ड ना, तभी हर इंडस्ट्री के अंदर जो भी मेरा वैन यूजर होता है ना, वो VPN पर ही काम करता है। नाउ गाइस रिमेंबर कि जो आपने नेट गेटवे और VPN गेटवे बनाया है, जो भी है उनको आप डिलीट करना ना भूलें, अदरवाइज आपके चार्जेस लगेंगे। और एक इंपॉर्टेंट, इलास्टिक आईपी आप कभी भी जनरेट करते हो तो इलास्टिक आईपी कभी भी अपने आप डिलीट नहीं होते, तो वो आपको मैनुअली क्या करने पड़ेंगे, वहां पे जाके रिलीज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो कहीं भी किसी भी रिसोर्स के साथ अटैच है तो पहले वहां से आपको उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। सो मैंने नेट गेटवे बनाया था, तो मेरे नेट गेटवे के साथ भी एक इलास्टिक आईपी अटैच्ड है। तो हम डिलीट द नेट गेटवे, देन वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सेकेंडली कि अगर आप अपने EC2 इंस्टेंस पे जाते हो तो वहां पर आपको दिखा देता है कि कितने इलास्टिक आईपी आपके यूज में है। तो अगर आप EC2 पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शंस आता है कि फर्स्ट टाइम आप जो मशीन लॉगिन करते हैं तो ये डैशबोर्ड पे आपके आके देखेंगे तो आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें आपने डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए इलास्टिक आईपी के अंदर यहाँ पे 2 आपको दिखा देगा, दैट मीन्स कि मेरे 2 आईपी यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि मेरे चार्जेबल है। स्नैपशॉट कुछ नहीं है, 7 सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, लोड इंस्टेंसेस 3 इंस्टेंसेस हैं, लेकिन तीनों मेरे टर्मिनेट में कर चुका हूँ। वॉल्यूम्स का मतलब है पार्टीशन उनकी हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं, स्नैपशॉट है, इलास्टिक आईपीज हैं, इन सब सारी चीजों के चार्जेस लगेंगे। आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स के कोई चार्जेस नहीं है, कीपेयर के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री टायर में नहीं है, बट पेड में मे भी हो। नाउ सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इलास्टिक आईपीज, ये दोनों आईपीज हैं, सिलेक्ट दिस आईपीज एंड वन बाय वन करते हैं। सो अनचेक एंड यहाँ पे इसको करना है रिलीज आई। रिलीज का मतलब है आपने दोबारा से सबमिट कर दिया।
और मैंने इतनी देर आईपी यूज करा है तो मेरा डेफिनेटली 110% बिल बनाओ. Got it? So now release. Clear? So thank you. Enough for today. Continue. Enough for today.